our DBMS. ठीक है students? Okay class, please, this is very important concept and इसी concept पे फिर हमारा normalization and your ER diagram will start. So please make it sure that you are understanding the concepts very well. अगर कहीं कोई confusion होता है, please ask me in between. Don't wait for the last moment. Ma'am, Yes, yes. ma'am, I just want to say that you have provided us the exercise वाला sheet. मैम Yes. मुझे ना उसका एक्चुअल में ना एक बार आंसर चाहिए बिकॉज बहुत जगह पे ना मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ लाइक काउंट फॉर सम इफ में. तो मैम अगर आप मुझे उसका आंसर्स के थ्रू मतलब आंसर्स भी प्रोवाइड कर सकते हो अगर तो I will solve it in the class आकृति, don't worry, कर दूंगी. ओके मैम. ठीक है, आप एटलीस्ट आप लोग प्रैक्टिस कर लो, सबको एक बार प्रैक्टिस करो so that we can discuss it in the class. ठीक है? Okay, okay, thank you ma'am. All of you have practiced only because Akriti has come up with the doubt. Yes ma'am. All of you? I too had 2-3 doubts. Okay, you also have doubts. So तभी होता है जब आप बनाओगे ना तभी आपका doubts भी आते हैं. ठीक है? चलो मैं करूंगी, पहले भी मुझे स्टार्ट करने दो. Database management system. See, now what is database management system? It's all about the entries of the data which you are making for any further usage. For example, अभी सुशांत और मेघा है, क्लास के CR है, so they must have maintained the data for section Q. Yes, सुशांत, मेघा? हाँ मैम, यस मैम. हाँ, आप लोगों ने बनाया तो आप बोलते हो ना हमेशा कि हमारा डेटाबेस है, we have prepared the database. So if anything I require it, the name list or anything of that sort from you, so I will just tell you that Sushant and Megha, please share it with me so that I can retrieve whatever data I want to filter out from that particular thing. Maybe in the section Q list you have entered the name, the enrollment number, the address, the gender, the educational qualification, their interest, their specialization they want to just opt for. So all those things you just wanted. Like for example, now अब मेरे को पता करना है कि अच्छा ठीक है अभी कोई कंपनी आ रही है इंटर्नशिप के लिए मार्केटिंग के लिए. Okay, so in marketing I will just find out that how many students are interested in the marketing one. So I will ask again and again. No, what I will do, I will ask the data from them and then I will just filter out and I will find out, okay, now 25 students are interested in the marketing field. So I will just shift that particular names to and share those names only with the placement department. In this section, only 25 students are interested. So for the database, it's really becomes very, very important that you just retrieve out the data, okay, as per your requirement, and which will facilitate you in finding out the data as soon as possible. It should not be like last moment of data collection you start doing. No, you don't do like that. So database management system is the day-to-day entry of the data, updation of any data, deletion of any data, modification in any data. All those things happen through it. इसका एक और real time example लेते हैं हम. Like for example, we withdraw money from our account from ATM machines. We transfer money from our account to some other account. So all those things when it is taking place. So उसमें क्या होता है? एक बार जो अगर आपने withdraw कर लिया है, so it deduct हो जाता है आपके main balance से, yes or no? Or it remains intact? Yes ma'am. कि withdraw हो भी गया तब भी उतने ही पैसे रहते हैं. It does not happen that. Your accounts get updated. Okay, so ये क्या हुआ? Updation of the data, updation of the account of your database, of your banks. So this is how your database concepts work. अभी इन सब चीजों में क्या concept use होता है, that we are going to discuss one by one. So it is a set of computer programs, okay, that controls the creation, maintenance, and the use of the databases of an organization and its end users. Like for example, आपने जितनी भी information system you have studied till now, all are working in the form of database, because if the backend is not given as the database, so wherein all those things are going to go? Like for example, TPS की जो बात हम कर रहे थे, that transaction processing system की. So transactions, whatever transactions which are happening, so it is impacting your database, right or wrong? Yes, ma'am. It is.
Yes, so your database gets updated. अभी आपकी पॉइंट ऑफ सेल होती है, अभी आप जैसे सेल कर रहे हो, सेलिंग हो रही है, तो क्या होती है वो पॉइंट ऑफ सेल पे आपका सेल्स डेटाबेस अपडेट हो रहा है कि on this date you have sold this much amount of products. Getting my point? So all those things are happening on the real time basis. So it is for the end users. As you know, end users are so many people who are actually using your databases, your customers, your employees, your suppliers, everyone who falls in the chain of your entire information system. So database is the backbone for all the information. So that जितना भी आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी है, अगर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपका प्रॉपर तभी काम कर सकता है when you are having a very solid database, so that when you can just transform all those data into information as and when it is required. See, ये concept students आज का नहीं है. This concept is really old, and these concepts are still very much usable. And on the basis of these concepts only, आज आपके latest जितने भी अभी जैसे Hadoop system है, पूरा आपका database manage करने में help करता है. You name it. Latest जितने आ रहे हैं chatbots and all everything, they are all taking the same concept, using the same concepts of DBMS, so that your data is properly entered and it can be used by the end users in a very, very easy manner. Okay, all right, students. So 4 major DBMS facilities, means the facilities or the main features which your DBMS provide to you are: first is your database development. क्लास इन सब फुल फॉर्म्स को प्लीज बहुत ही जरूरी है, इसको भूलना नहीं आपको, ठीक है, इसको भूलना नहीं है. DDL, ठीक है, नॉट DDLJ, DDL, दैट इज योर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, वेयर इन you are going to define that how your data is going to be like. For example, अभी बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन बहुत ही वैलिड एग्जाम्पल है. अभी आप लोग जैसे भी बात की, सुशांत एंड मेघा ने डेटाबेस क्रिएट किया. अभी अब आप एक बात बताओ, आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको कौन कौन सी जो स्पेसिफिकेशंस है और दी कैरेक्टरिस्टिक्स है या फीचर्स हैं या फील्ड्स है which you want to collect for of the students. The data is about the students. How you have decided that? Yes. Yes, Ma'am, based on the requirement. Based on the requirement. Who have given you this requirement? Ma'am, like we were distributed actually among also. these sections, and that distribution made us कि हाँ हमारे सेक्शन में 50 लोग हैं तो उन 50 का डिटेल्स होना चाहिए, जो बेसिक डिटेल्स है हमारे पास. एंड देन जो स्पेशलाइज्ड डिटेल्स होते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन इनको ऑप्ट करना है, वो करना है, तो वो रिक्वायरमेंट बेसिस पे चेंज हो जाता है डेटाबेस में. Yes. So you have given me a complete definition of the data definition language. That is, as an administrator, when you have started creating the database, you have first categorized the basic things, which is very much normal. That you know, like for example, name हो गया, उनका एड्रेस हो गया, उनका एज हो गया, उनकी जेंडर होगी, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, उनका टेलीफोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया. तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? These are the basic requirements. Now, as what Sushant has said, that as per that, it is just the requirement based. Requirement जैसी जैसी आएगी, आप अपना डेटा कंटेंट बढ़ाते चलो. समझ में आया स्टूडेंट्स? डेटा कंटेंट पहले आपने स्पेसिफाई किया कि हमें ये कंटेंट चाहिए. वी वांट द बेसिक कंटेंट्स अबाउट द स्टूडेंट्स, and then you slowly and gradually, now you are just crossing your first semester, now you'll be moving into your second semester. So what is जब आपका internship start होने वाला, तो by this time you are now aware कि okay, I just want to opt for finance, I want to opt for marketing, because you will be doing the internship there only. So that is why how your relationship will start. You will start building that, and you will prepare the structure of the database. Like the structure means at what you want to just take from the students. What you all want to take up from the students. जैसे आप Excel sheet पे बनाते हो, तो Excel sheet में maybe first sheet is the basic one, second में आपने specialization sheet create की, third में आपने उनकी marks डाली है कि कहीं आपको पता करना होता है कि let's find out
all the students who are having more than 65% throughout 10, 12 and their graduation. Yes, तो आप अपना फॉर्मूला लगाए और फाइंड आउट करके निकाल लिया कि अच्छा ठीक है इतने सारे बच्चे हैं जिनका 60 प्लस आ रहा है थ्रू आउट. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू जस्ट फाइंड आउट, यू मॉडिफाई, you make these changes, you specify the structure of each and every database. Okay, so your DBA, that is your database administrator, uses the data definition language, definition DDL, yaad rakhna students, data definition language, to develop and specify the data types, that what you want to collect, how the relationships will be going to establish amongst those tables. Okay, and what is the structure of each database is going to be. Okay, clear students? Any confusion? Yes, ma'am. Now comes the very important concept is the database interrogation. So first is your first point is your database development, and second is your database interrogation. So what does interrogation mean? Interrogation क्या होता है generally students? जैसे सुनते हो ना उसको interrogate किया गया. So interrogate means what? You have asked question in a very in-depth manner, so that you are satisfied what you wanted to ask from. Yes, interrogate इसलिए करते हैं ना लोगों को, जनरली पुलिस करती है, इतना क्वेश्चंस पूछो कि whatever you are striving for, whichever query is driving in your mind, you get the full result of. So database interrogation is made in it is meant up in such a way that it allows end users without programming skills, जरूरी नहीं कि उनको बहुत हार्डकोर प्रोग्रामर बनना पड़ता है उसके लिए, no, a big no, programming skills to ask for information from the database using the query language or the report generator. So query language एक अपनी हो गई SQL, जो कि हम लोग अभी एक्सेस में कराऊंगी आप लोगों को, थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन क्योंकि एक्सेस में उतना हार्डकोर नहीं लिखते हैं हम लोग. And then your structured query language will find out select from where, means select what, select particular whatever you want to select. Like for example, if you want to select 21 BSP 0108 मुझे करना है, तो कौन है ये? प्रणाली है. अभी तो मैंने यहाँ पे ढूंढ के निकाल दिया कि प्रणाली है. From where I want to find out, from section Q. Okay, from section Q, like for example, and then where, या मेरे को अगर मेरे पास अगर कुछ कंडीशन है तो वो मैं डाल दूंगी कि where the this thing is enrollment number is equal to this much. ठीक है, सो हम वहां से वो सेलेक्ट करके निकाल देंगे. लाइक सेलेक्ट स्टूडेंट, जैसे मान लो मेरा मेन क्वेरी रहता स्टूडेंट, तो सेलेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम सेक्शन पी मेन फाइल वेयर द एनरोलमेंट नंबर इज दिस. तो वो मुझे पूरे डेटाबेस में अगर कहीं भी प्रणाली है विद 21 BSP 0108, इट इज गोइंग टू जस्ट फेच आउट एंड द सिस्टम इज गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ. ठीक है, सो आफ्टर फ्रॉम द यूजर लिस्ट द फाइल्स और द टेबल्स. जैसे from where means from where आपको ढूंढना है, from section Q. Okay, so or the tables from which the data must be retrieved. तो कौन से टेबल में आपका है एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट कर रहा है आपका where enrollment number. तो enrollment number मेरा ऊपर का हो गया, सो वहां से हम रिट्रीव करेंगे 21 BSP 101. ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड करते हैं. सो एंड वेयर यूजर स्पेसिफाइड कंडीशंस दैट लिमिट्स द सर्च. तो यहाँ पे आप अपना लिमिट प्रोवाइड कर देते. So this is the query based languages. This is the SQL, structured query language. Anyone in the class who had done SQL earlier? Also, आजकल तो 12th में. Yes, ma'am. Ma'am, Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So it's very easy. You all also know students. It's very simple to understand. Now comes the very important one, which is now completely coming into picture. जो सारा AI based अब ये सब सारी होने वाली है. That is the query by example. इसको मैं पढ़ के देती हूँ, आप लोग मुझे इसका एग्जाम्पल दो. This methods allow, क्योंकि हम सब करते हैं इसको, we all do it. This method allows users to point and click on the display boxes for each of the data fields in one or more files to specify the rules of the search. बताओ स्टूडेंट्स, आप लोग, हम लोग सब करते हैं इसको. Yes, सोचो. Yes, Amruta. Just think. क्या है ये?
Come on, students. मैम टैब्ल्यू में ऐसा होता है क्या? एक्सेल शीट मैम। सुशांत, टैब्ल्यू मत जाओ, एकदम बेसिक चीज जिसमें हम लोग सब यूज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन मैम लाइक कोई यस मैम आई थिंक लाइक कोई starts in any online application, हाँ online shopping application, there is a display and with the Filters, ma'am. search यस, Filters. वेरी गुड, वेरी Flipkart, गुड, like गॉट इट, गॉट इट। किसने आंसर किया? Rajiv ma'am. राजीव, वेरी मच करेक्ट। आप लोग सब शॉपिंग करते हो ना, उसमें आप Yes ma'am. जब क्वेरी बाय एग्जांपल आपकी फिल्टर के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखते हो वहां पे कि आपको प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, कलर कौन सी होनी चाहिए, ब्रांड कौन सा Yes. होना चाहिए, साइज कौन सी Yes, होनी ma'am. चाहिए, जेंडर क्या होनी चाहिए। सोचो कितना मतलब डेप्थ में पूरी चीजें हो गई। एंड देन व्हेन यू क्लिक ऑल दोज ऑप्शंस, देन फाइनली उस ऑप्शंस को जो रिलेट कर रहे हैं जो प्रोडक्ट्स, वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाते। यस, Yes ma'am. Yes, ma'am. वेरी सिंपल, वी ऑल आर यूजिंग इट नाउ इन टुडेस सिनेरियो। अभी आप जैसे मूवी सर्च करते हो तो मूवी कैसे सर्च करते हो कि कौन से एरा में होना चाहिए, कौन सी मूवी किसके कौन से एक्टर की देखनी है, कौन से जैसे जनरली आई फाइंड वेरी ओल्ड मूवीज इफ इट इज देयर, सो इफ ओल्ड मूवीज आई एम फाइंडिंग आउट कौन से एक्टर की होनी चाहिए, कौन से डायरेक्टर की होनी चाहिए, सो यू जस्ट चेक आउट एंड देन यू जस्ट फाइंड आउट द मूवी एज पर योर चॉइस। So these are known as the query by example. इस पे AI ने बहुत काम कर रहे हैं। Now this will be like कि आप बस चेकिंग भी खत्म होने वाली। It's all that आपके जो पास्ट जितने सर्चेस है उसके अकॉर्डिंग वो आपको सर्च करके and then they will recommend it to you. Like for recommendations also happening through this all. आपके पास्ट सर्चेस के बेसिस पे एक एक क्लिक जो हो रहा है वो सब सारे क्या है, सारे डेटाबेस के कॉन्सेप्ट। each and every click is getting stored from some or the other. एक इसका और एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को, कैसे आपके एक एक क्लिक आपके चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बाय समथिंग एंड यू वांट टू बाय अ ड्रेस एंड यू हैव सीन दैट ओके दिस इज ठीक है, रीजनेबल है, वॉट एवर अमाउंट यू हैव थॉट ऑफ उस बजट में आपका आ रहा है। नाउ व्हेन यू हैव गॉन टू द चेक पॉइंट, यू हैव सेलेक्टेड द ड्रेस, फाइनली यू हैव कम टू द चेकआउट पॉइंट पे। तो चेकआउट पे आप देखते हो कि माय गॉड द शिपिंग चार्जेस आर रियली हाई, द प्रोडक्ट कॉस्ट वाज 900 एंड बिकॉज ऑफ द शिपिंग चार्जेस इट इज कमिंग टू अराउंड 1100 or 1200 समथिंग लाइक दैट। बोले नो इट इज नॉट वर्थ ऑफ 1200, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड सो मच। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने वहीं पे अपनी जो पूरी परचेजिंग थी वो आपने स्टॉप कर दी। ओके, दैट क्लोज कर दिया आपने, बोला नहीं मुझे अभी नहीं लेना, when I'm going to buy 2 things, जब मेरी shipping free हो जाएगी then I'm going to buy this, I'm not going to buy it now. Done? Can you repeat the last point? Your voice wasn't clear. Okay, then like for example, we were just discussing that at the last you have seen that your dress was of or anything which your product which you are buying was 900 ka tha, but the shipping charges is coming to total 200 or 300 something like that, and because of that shipping charges your product is now coming to 1200. तो आपने वहां पे क्या किया, you have stopped your purchase, you had thought कि no it's not worth spending 1200 for this dress, 900 was okay, I'm not going to buy this. You close your system or the application and you are done. No, not right now. आपने अपना postpone कर दिया। now आपने तो postpone कर दिया। What about the organization? Organization के लिए आप किस कैटेगरी में आते हो, उनके पोटेंशियल कस्टमर या उनके नॉन परफॉर्मिंग कस्टमर, या फिर हो सकता है कि मे बी सम पोटेंशियल दिखा हो कि ठीक है नहीं टुडे ही इज नॉट बाइंग, ही और शी इज नॉट बाइंग, बट मे बी टुमारो ही कैन बाई इट। आपको तुरंत मेल आता है या मैसेज आता है आपने चेक पॉइंट पे आपने यू हैव स्टॉप्ड परचेजिंग। Why that thing is coming to you? Why that message or mail is coming to you? मैम वो डेटा सेव हो जाता है कि yes. कस्टमर ने हम अगर हम कोई भी क्लिक कर रहे हैं ना, इवन हम चेकआउट तक ना भी जाके अपने कार्ट में भी सेव कर रहे हैं तो भी
वो उनके Yes. डेटाबेस में सेव होता है और हमें मेल्स रिसीव होते हैं कि यू हैव सेव्ड दिस Yes. आइटम कार्ड। एग्जैक्टली। तो आप सोच लो, आपका एक एक क्लिक जो है वो मॉनिटर हो, ठीक है, एक एक क्लिक आपके रिकमेंडेशंस, दिस प्रोडक्ट इज स्टिल लाइंग इन योर कार्ट, just now Deepika has said, why you have not purchased it at the last moment. Okay, what is the reason? पता है, इस पे केस स्टडी 6 महीने पहले मैंने पढ़ी थी, एल्जेवर रिसर्च जर्नल में छपा हुआ था कि what are the factors because of which consumers are withdrawing their purchases at the last checkpoint, and the list is huge around all over the globe, around तुमको 200 ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन और वेबसाइट वाले जो जितने भी कमर्शियल ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनको चेकआउट किया गया था, एंड देन द रिजल्ट वाज फाउंड आउट। फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए थे, मे बी नेटवर्क वाज वन ऑफ द फैक्टर, बट शिपिंग चार्जेस, कस्टमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, दे हैव फाउंड समथिंग एक्स्ट्रा, all of these things were extracted from the database. Because of that reasons, customers have stopped purchasing at the checkpoint. जब वहां पे पहुंच चुके हैं, then they have finally decided no, I'm not going to buy. तो ये सब सारे जो होते हैं ना, ये मार्केटिंग के बहुत सॉलिड टेक्निक्स है, इसमें डेटा एनालिटिक्स में भी बहुत काम हो रहा है अभी, ठीक है, कि why, how can these types of things can be easily generated and they can be converted into their final customers. इस फैक्टर्स जो फाइनल चेक पॉइंट वाले चीजें, इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए। इसीलिए बहुत टाइम आप देखोगे Amazon हमेशा आपको ये करके देता है, क्या नाम है, शिपिंग फ्री करके देता है, लेकिन वो सम और दी अदर फिर दे आर चार्जिंग, कहीं से ना कहीं से वो अलग तरीके से आपको चार्ज करे। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि व्हेन ईच एंड एवरी डेटा इज कलेक्टेड ऑन द रियल टाइम बेसिस एंड सेलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स। If this is happening in this way, then it is really good. So that is why structure, content, you already decide well in advance that which type of data you will be collecting. So एक एक क्लिक का डेटा आपके सामने आ रहा है। अभी जैसे मैं आपकी रिपोर्ट निकालती हूँ आपके टेस्ट का, जैसे when you have attempted your quiz, मुझे एक एक चीज पता है कि आपने किस टाइम पे कितने क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया, when you have entered, when you have logged out, every detail, आपकी पूरी टाइम स्टैम्पिंग इज अवेलेबल। आपने किस क्वेश्चन को किस सर्वर टाइम पे किया है, आई हैव द फुल स्टैम्पिंग। इसीलिए ना कभी कोई बच्चा बोलता है कि मैम उस टाइम पे मेरा नहीं हुआ, तो आई कैन इजीली गो एंड चेक, ओके ही गॉट लॉग्ड आउट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। तो हम ऐसे हैफेजली थोड़ी करते, हम चेकआउट करते हैं कि कोई बच्चा अगर गया है तो उसका व्हेन दे आर टेलिंग दैट अच्छा उन्होंने उनका लॉग आउट पहले हो गया था, how this has happened. So already the content and everything is created. अब आप जैसे गूगल फॉर्म्स बनाते हो ना, बनाया होगा आप लोगों ने रिस्पॉन्डेंट्स को, अभी गूगल फॉर्म्स में जैसा फॉर्म क्रिएट करते हो, आप देखते हो कि एक्सेल शीट में एकदम सेम स्ट्रक्चर में आपका पूरा एंट्री होके निकल के आता है। यस, the way in which you have designed the form. Yes, so this is how your database content creation facilitates. अभी आप उसको उसमें जो भी add on करना होगा, you keep on adding, you keep on merging. There is the possibility of merging also. So वो सब सारा चीजें आप कर रहे हैं. So your database interrogation generally happens in two ways. That is through your SQL, and the second one is through your query by example. याद है रहेगा students? Very important concept. SQL and query by example. मैम एक डाउट था कि जैसे हम लोगों ने, मैंने कोई फॉर्म बनाया तो उस फॉर्म में जो भी एंट्रीज फिल आउट होंगी वो सब मेरे डेटाबेस पे सेव होंगी। यस, तो जो मैंने फॉर्म बनाया है वो क्वेरी बाय एग्जांपल का ही एग्जांपल है ना? नो, दैट विल नॉट बी, दैट विल बी द सिंपल डेटाबेस क्रिएशन। ये तो आप इंटरोगेट कर रहे हो ना बच्चे, ये तो इंट्रोगेशन के लिए, हम रिट्रीव करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो एग्जांपल उसका नहीं। ये तो ये आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप डेटाबेस डेवलप कर रहे हो। ओके मैम, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन हो रहा है। और जब आप रिट्रीव करते हो, ठीक है, जैसे आप रिट्रीव कर रहे हो, यू आर फाइंडिंग आउट, एक्सट्रैक्टिंग द डेटा, देन योर एसक्यूएल एंड क्वेरी बाय एग्जांपल्स। ठीक है,
ओके जैसे मतलब अभी you किसी mean ने एक्सेल का एग्जांपल दिया था, एक्सेल का एग्जांपल किसी ने दिया था अभी राइट नाउ, दैट आप वहां पे फिल्टर आउट करते हो तो सारे बॉक्सेस टिक करते हो एंड देन यू रिट्रीव द डेटा. यस यस करते हो ना, तो वो भी yes 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 ओके. Now the third very important is your database maintenance. एक तो होता है updation of the database. Updating the database and the maintenance are conducted by all the transaction processing program. So each and every transaction which is happening, it is getting updated in your system at that point of time itself. Then comes your application development, that is your data manipulation languages. It is being done. Students, DDL, DML, ये both the things, both these concepts are really very important, and please इसका full form correctly लिखना, हम लोग गलत नहीं लिखना है. So manipulation. What do you understand by manipulation, students? Manipulation. We can insert data in the table. Insert, Yes. and we can update data, etc. Updation. change in the data. Yes, modification, updation, ये सब जितनी सारी चीजें होती हैं, when you are manipulating it by adding something, deleting something, modifying something, that is the part of your data manipulation language. So your application development facilitates you that if any changes you are doing, it is reflected throughout your database system. For example, अब आप देखो जैसे आप लोगों ने ये करते हो ना, व्हेन यू आर, जैसे भी हम बात कर रहे थे आपके इसके आप जो डेटाबेस क्रिएट किए हो अभी, फॉर एग्जांपल आपने एक सब सारे फील्ड्स पेजेस में एक चीज कॉमन होगी, दैट इज द नेम एंड दी दिस थिंग, क्या कहते हैं उसको, योर एनरोलमेंट नंबर. ठीक है, अभी आप एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल प्रणाली का हमने प्रणाली ने अपडेट किया, सुशांत को बोला प्रणाली की प्लीज चेंज माय अपडेट माय मोबाइल नंबर, नाउ दैट मोबाइल नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग. सो सुशांत हैज अपडेटेड इन द फर्स्ट शीट. इफ हिज शीट्स आर नॉट लिंक्ड विथ ईच अदर, अब क्या होगा, अभी जो बाकी जगह पे जहाँ पे उसके मोबाइल नंबर्स एग्जिस्टिंग है, तो क्या हर जगह वो चीज अपडेट होगी, बताओ स्टूडेंट्स? No, ma'am. No. So for that, it is really very, very important that you are integrating and connecting all your data, so that if one place you are making the changes with that particular enrollment number, okay, so that enrollment number से जो phone number जहाँ जहाँ attached होगा, everywhere your data will be updated. So that is why your data redundancy का जो problem होता है ना, वो DBMS eradicate करता है. So it means that still our database is working in the traditional environment, is not working in the database. Getting my point? Yes, ma'am. Yes. So we will discuss it, more points on it. Now, very important concepts comes in is of the acid properties, students. Acid properties is the abbreviation of atomicity, consistency, isolation, and durability. A stands for atomicity, C stands for consistency, I stand for isolation, D stands for durability. आज तक जब से डेटाबेस डिफाइन हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट पे जितने भी आपके AIML सब इसी पे काम करते हैं, क्योंकि without this your database will not work properly. So we will discuss it one by one, that what does all this mean. प्रॉपर्टी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रॉपर्टी, whenever the question will come, and this question comes everywhere, this was really very, very important. When we talk about the properties of your database management system, the properties are acid properties. और इसको हमेशा आप स्मॉल में नहीं लिखते हो, इसको कैपिटल, बिकॉज इट इज द एब्रिविएशन. गेटिंग माय पॉइंट? एब्रिविएशंस हमेशा आप कैपिटल लेटर्स में लिखते हो. Got it? So A stands for atomicity, C stands for consistency, I stands for isolation, D stands for durability. So what does atomicity mean? Atomicity means that all the transactions which is taking place should have one transaction reflecting in your database or none. Or none. For example, आप जब पैसे withdraw करते हो, तो जब पैसे विथड्रॉ करते हो तो डेट वाइज होता है कि ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव विथड्रॉन दिस मच अमाउंट ऑफ मनी.
तो ये एक डेटा एंट्री हुई आपकी अकाउंट में, और क्या हम इसमें मल्टीपल अकाउंट एंट्री करेंगे कि आपने इस डेट पे इतने पैसे विड्रॉ किए, इस टाइम पे इतने पैसे विड्रॉ किए, तो ये डबल एंट्री नहीं ना करनी है, हमें सिंगल एंट्री करनी है। हमने अपनी स्ट्रक्चर ऐसे बनाई हुई है कि जिसमें टाइम, डेट, month, to whom, everything comes in a sequential manner. Getting my point, students? और none, और चाहे तो कुछ भी ना एंट्री करो। अगर आपको अपना डेटाबेस प्रॉपर रखना है तो एक एंट्री होनी चाहिए किसी भी एक ट्रांजैक्शन के लिए, और none of the entry should be there. Getting my point, students? एक एंट्री होगी, दो एंट्री नहीं होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग अपडेट करके दो कि where you all stay, ओके, वेयर यू ऑल स्टे, अभी आप मुझे 4 जगहों के नाम लिख के दे दो कि यू स्टे हियर हियर हियर। आपके ये तुम पूछोगे कि भाई तुम रहते कहाँ हो, तो तुम बोलोगे मैम ये मेरा परमानेंट एड्रेस है, ये मेरा टेम्पररी एड्रेस है, ये मेरा लोकल एड्रेस है। इतने सारे एड्रेस आप मुझे देके दो, तो क्या वो एंट्री सही होगी? विल दैट एंट्री विल बी फाइन? नो मैम, no, it will create very much discrepancy in your database. So एक पर्टिकुलर एंट्री के लिए हमें एक ही पर्टिकुलर डेटा की एंट्री करनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, जब आप एड्रेस की ही बात हम करते हैं, जैसे कभी बहुत सारे आप लोगों ने फॉर्म्स फिल किए होंगे, अभी अब प्लेसमेंट के टाइम में भी विल बी फिलिंग अप मेनी फॉर्म्स, उसमें आप देखोगे आपको हमेशा देख के आता है एड्रेस। एड्रेस में एक होता है आपका लोकल एड्रेस एंड वन इज योर परमानेंट एड्रेस, और उसमें मेंशन रहता है कि इफ योर लोकल एड्रेस इज सेम एज ऑफ परमानेंट एड्रेस, यू कैन टिक दैट एनी बॉक्स इज मेड एंड देन यू कैन टिक दैट। यस, ऐसे फॉर्म फिल किया है आप लोगों ने? सेम एज अबव या बिलो ऐसा लिखा होता है। Yes, same as above, yes, and below as well. So these are also that कि इससे क्या होता है कि डिस्क्रिपेंसी नहीं होती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एंट्री के लिए, एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए only one entry will be coming in. Same as with the age. When you ask your age, आप देखोगे अब आजकल छोटे से वो small calendars बने रहते हैं, Google Forms में भी रहते हैं वैसे calendars बने, so that you can provide that calendar, you can select the date, month, year from there, और immediately आप जहाँ select करते हो आपका age बगल में आ जाता है, it get reflected over there. Yes, so this is how we just think of it that so that we are just yes Deepika, सॉरी टू इंटरप्ट मैम, मैंने जो एटॉमिसिटी पढ़ा है मतलब उसमें ऐसा था कि जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो तो फुल्ली एग्जीक्यूट होने चाहिए या फिर वो एग्जीक्यूट ही ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो पार्शियली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं ना दीपिका, ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, जो एंट्री हमने करनी है। हाँ, सेम, यू आर करेक्ट, एग्जीक्यूशन पे आ रही हूँ, मुझे पहले आने दो ना, ठीक है, क्योंकि अभी हम मैं कंसिस्टेंसी एग्जीक्यूशन से समझाऊंगी आप लोग, ओके ठीक है? हाँ, ओके। सो जो रिफ्लेक्शन होती है आपकी डेटाबेस में, वो शुड बी मोर देन, इट शुड बी वन और इट शुड नॉट हैपन वन। नाउ व्हाट दीपिका वाज टेलिंग, अभी अब आ रही हूँ उसके एग्जांपल पे, तो एटॉमिसिटी मींस हमेशा आप समझो कि वन, एटॉमिसिटी मींस एक यूनिक और एक वननेस होनी चाहिए, कि एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, कि मींस फॉर वन ट्रांजैक्शन only one type of entry should be made. Now why it is required, why it is important for the atomicity? Now we coming for the execution part, we will be talking about the consistency. Consistency discuss करने से पहले I want that all of you read this example first. All of you, please, very important. अगर ये समझ में आएगा आपको consistency and what Deepika was telling, वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा. Now, account A is having a balance of $400 and it is transferring $100 to account B and C both. Getting my point, students? So $400 है आपके अकाउंट में and आपको $100 अकाउंट B and अकाउंट C में ट्रांसफर करना है. Getting my point? तो technically आपके अकाउंट में फिर कितने पैसे बचते हैं? $200. Okay, so ये आप एकदम फुल प्रूफ, एकदम आप टेक्निकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो कि ठीक है, बीसी को हमने $100 दिए हैं, सो वी आर लेफ्ट आउट विद $200. बट डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में अगर कंसिस्टेंसी और एटॉमिसिटी नहीं रहेगी तो क्या प्रॉब्लम होगा?
दूंगा, ये चेकआउट करो. दैट इज व्हाई ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम वाज आल्सो इरेडिकेटेड एंड द डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स केम इनटू पिक्चर. So we have two transactions here. Let's say these transactions run concurrently. What do you understand by concurrently, students? एक साथ, at the same time. Same time, simultaneously. हाँ, yes, very good. So same time पे आपने ये दोनों जो है इसको रन किया. And both transactions read 400 balance. See, कितना फायदे में रहेगा अकाउंट ए वाला. 400, जैसे बी में जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं और सी में भी जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दोनों ने ये रीड किया कि हमारे अकाउंट पे $400 आर लेफ्ट. तो अब आप बताओ कि फाइनल बैलेंस कितना रहेगा अकाउंट ए में अगर ये वो $400 रीड कर रहा है तो $300 इंस्टेड ऑफ $200. दिस इज रॉन्ग. ठीक है, ये रॉन्ग है और ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में बहुत ही ज्यादा हो रहा था. सो इफ द ट्रांजैक्शंस वेर टू रन इन आइसोलेशन, then the second transactions would have read the correct balance, that is $300 before debiting $100. So it should happen one by one. Once the first transactions went successful, then the second transaction should start. Now come to atoms. इसीलिए हम बोलते हैं कि एक ट्रांजैक्शन की एक ही एंट्री होनी चाहिए. It should not be meant simultaneously. It should not happen simultaneously. Otherwise, it will create complete chaos in your entire database. फायदा किसका हो रहा है यहाँ पे? अकाउंट ए को, कि वो तो रीड कर रहा है मेरा 400, दोनों में से अकाउंट डिडक्ट हो गया, 100 रुपीज का गया, 100 रुपीज, बट यू आर लेफ्ट आउट विद $300. और ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट होते थे किसी जमाने. ऐसे प्रॉब्लम्स, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल ऑडिटिंग, ये सब सारे कितनी टाइम लगती थी इन सब चीजों को करने में. इट वुड लास्ट में अकाउंटिंग, मंथली ऑडिटिंग बैंक्स में हुआ करते थे, सो दैट कि ये सब जितने टाइप के ट्रांजैक्शन है इसको इरेडिकेट किए. So this is how the consistency came into picture. To preserve the consistency of the data, the transaction should take place in isolation. What does that isolation mean? That means no other transaction should run concurrently when there is one transaction already running in picture. ऐसा अगर होगा, then सोच लो क्या होगा. Banking system will be in complete chaos. So it should be bent and done in such a way that one at a time transaction, or obviously it takes very less time. आपको एक साथ कितने सारे लोगों को पैसे देने हो, आप 10 मिनट में काम खत्म कर लेते हो, सबको फटाफट करते हो, लेकिन one at a time, not same time or the same point of time. It cannot, होगा ही नहीं. It is not possible at all. एक और प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आया था when in the early 90s, when you were very small, मैं भी छोटी थी तो, और must not have been born that point of time also. क्या हुआ था? HSBC was the first bank which came up with the ATM machines in our country, in India. ठीक है, अभी इंडिया में वो लेके आई थी, and then what was happening? Internet was not very much in the network. The entire network setup was not very advanced in our country that point of time. ठीक है ना, इंटरनेट बहुत बड़ी मैजिक हुआ करती थी. We still remember that those were our childhood days. Internet was such a big thing for us. And what happened that when, or obviously these days जितने transactions होते हैं ये सब सारे network based transaction होते हैं, तभी तो रियल टाइम में काम होता है. रियल टाइम काम करना है तो मतलब नेटवर्क बेस्ड रखना है. रियल टाइम ट्रांजैक्ट, ग्रॉस सेटलमेंट, ये सब सारी ग्रॉस सेटलमेंट की जब हम बात करते हैं तो रियल टाइम में सारी सेटलमेंट होनी चाहिए. So what was happening, students? People were withdrawing money, but their accounts were not updated immediately. वो स्लॉट में होते थे, जैसे हमने किया था ना, याद होगा आपको, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम इन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में दो टाइप के कौन से सिस्टम थे? 2 types of system, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम और रियल टाइम एंड योर बैच प्रोसेसिंग सिस्टम. याद है ना स्टूडेंट सबको? यस मैम. यस. तो क्या होता था वो बैचेस में. मैम आई हैव एक पॉइंट है मैम. मान लीजिए कि
मतलब इस एग्जाम से के हिसाब से दैट आई हैव टू यूपीआई एप्स, वन गूगल पे वन फोन पे, मैं एक ही दो ऐप यूज करके एक ही टाइम अकाउंट से किसी को पैसा भेज रहा हूँ। तो मैम ये तो एक साथ सेम टाइम तो प्रोसेस हो रहा है, नहीं मतलब होगा ना गौरव, कैसे होगा बताओ ना, पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। मैम सेम आप एक टाइम पे बात हम दो जगह लॉगिन भी नहीं रह सकते। नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, पॉसिबल ही नहीं है ये। दिस इज समथिंग बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन कि हम एक साथ, अच्छा अब बात आप गौरव मुझे ये भी बोलोगे कि मैम मैं 2 डिवाइसेस से एक साथ लॉगिन कर लूंगा, वो भी नहीं हो पाएगा। एक कुछ सेकेंड्स के इंटरवल रहेगा ही उसमें, आपका बैंक ही नहीं एक्सेप्ट करेगा, आपका बैंक ही नहीं एक्सेप्ट करेगा इन चीजों। हाँ, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट हम 2 कंकरेंट ट्रांजैक्शन एक साथ फॉलो करें। सो हाँ, तो प्रॉब्लम हो रही थी आपकी एटीएम मशीन से। तो एटीएम मशीन में क्या हुआ कि पीपल वर विथड्रॉइंग वेरी हैप्पी, अकाउंट ही नहीं अपडेट हो रहा है। अरे मैंने पैसे निकाल लिए, पैसे तो अपडेट ही नहीं हुए हमारे, अभी भी उतने पैसे हैं, ठीक है, लेकिन वो सब हो रहे थे स्लॉट्स में होने थे अपडेशन, बट पीपल वे वेरी हैप्पी। चलो जब तक अकाउंट में पैसे हैं तब तक पीपल वेर हैप्पी, बट व्हेन दे वेर depositing the money and then that was not getting updated, then the real chaos came into picture कि अरे भाई ये सब तो फालतू चीजें हैं, इससे कुछ नहीं होता है। The thing is that we are depositing money, transferring money and that is not happening in time. Then what's the problem? तो उसी टाइम आपका concept of your entire real time gross settlement came into picture when under the purview of your Reserve Bank of India आपका कि ये सब सारे settlement को real time, and for that you require a very strong network system. Obviously बात आप लोगों ने पढ़ाई है इंटरनेट एक्सट्रानेट में कि कितना स्ट्रांग होता है आपको एक इंटरनेट सेटअप करने। जितना आपका इंटरनेट और नेटवर्क इफेक्टिव रहेगा, आपकी उतनी अच्छी आपकी पूरी ये सेटलमेंट विल हैपन इन अ मच फास्टर। आप कितने भी ट्रांजैक्शन करो, obviously it will be done one by one, but again it on a very faster. So this type of consistency can only happen when we have a very strong network base and we have a real time settlement processes happening. Now we'll talk about कि मैम फिर बैच प्रोसेसिंग का क्या, तो हम पहले ही डिफाइन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में हम जब चेक डिपॉजिट करते हैं कितना टाइम लगता है चेक को क्लियर होने में, चेक और ड्राफ्ट को क्लियर होने में कितना टाइम लगता है? 2 days, मैम मैक्स 3 days। यस, तो अभी आपको भी पता है, हाँ ऐसा हमें भी पता है कि आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका कितना भी अभी एडवांस फीचर आ गए हैं हमारे पास, लेकिन चेक को आज भी क्लियर होने में 2 दिन लगते हैं, 2 वर्किंग डेज बोलते हो ना, क्या बोलते हो 2 वर्किंग डेज स्टिल लगता है। तो क्यों? क्योंकि इनका काम बैचेस में होता है, ये रियल टाइम में नहीं होता है। इसीलिए हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि हमारे स्ट्रक्चर में ये बैच में आएगा। Checks will always come into batches. Drafts से related जितने भी transaction होंगे वो सारे batches में आएंगे। It will not be real. Real time पे सिर्फ आपके जितने IMPS transaction हैं और RTGS के, UPI के, ये सब सारी चीजें आपके it will come under the purview of your real time settlement, but not all these. These are into batch system. So आपको जब when you are designing your information system, उसी टाइम पे ये सब सारी चीजें आपको define कर देंगे कि कौन सी चीजें हैं which you will be taking into real time settlement service and which all transactions will be coming under the purview of your batch process. मैम जो बैच में प्रोसेस होता है उनको थोड़ा डिले लगता है, लाइक जैसे आपने भी चेक का एग्जांपल दिया, राइट? बट यहीं अगर हम कंपनीज की बात करेंगे जो सैलरी ट्रांसफर करते हैं एम्प्लॉइज की एक साथ 100 और 1000 एम्प्लॉइज की, बट वहां पे तो फिर वो रियल टाइम ही हो जाता है। हाँ, रियल टाइम ही होगा। सेक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। यस लेकिन बट स्टिल क्या होता है, सैलरी सबको एक साथ नहीं मिलती है, वो जब ऐसे आती है ना तो वो बैच ही रहता है, बैच को एक साथ वो अपलोड करते हैं, तो वन बाय वन सबको मैसेजेस आने शुरू हो, एक साथ नहीं आता। रियल टाइम बैच प्रोसेसिंग सिस्टम ना? यस, हाँ रियल टाइम बैच प्रोसेसिंग क्या होती है, वो आती है रियल टाइम में, लेकिन वो फिर भी एक ट्रांजैक्शन वन एट अ टाइम ही आती है। आपकी सैलरी आई लाइक दैट इट कम्स बैच में, बट दैट ऑब्वियसली दैट रियल टाइम
ओके अभी देखो ओके ना, तुम जब ऑर्डर करते हो कोई भी प्रोडक्ट, व्हेन यू आर ऑर्डरिंग, सो ऑर्डरिंग तो थोड़ी होता है कि आप ऑर्डर करते हो और आपके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है। इट फॉलोज अ सर्टेन स्टेप्स। आपकी ऑर्डर आईडी जनरेट होती है, गेटिंग माय पॉइंट। देन यू स्टार्ट ट्रैकिंग। देखो ना, एक पूरे फ्लो चार्ट बन के आती है आपके सामने कि कब डिस्पैच होगा, कब शिपिंग होगी, व्हेन इट विल कम आउट फॉर द डिलीवरी। So maybe you are receiving in 24 hours, but that particular process will be fulfilled before the receiving of that particular product. या भले उसी दिन, maybe sometimes so Amazon सुबह ऑर्डर करो शाम भी पहुंच जाता है, but that will follow that the same process. Maybe वो टाइमिंग्स जो है वो शॉर्ट हो जाती है, but it is coming to the same level of working. ठीक है? Any problem, students? Till in atomicity and consistency? No ma'am. नो मैम। ठीक है, hope it is clear. Yes ma'am. Now the isolation which we were talking about, so that for every pair of transaction, one transaction should start execution only when the other finishes the execution. Okay, आप तभी अभी pair of transaction, what do you understand? Means when you just want to do two transactions together, like just now Gaurav was telling कि मैम मुझे दो लोगों को करना है, तो ठीक है, तो लेकिन आपका जो वो डेबिट और क्रेडिट जो हो रहा है वो एक साथ नहीं होगा। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आपको सेम टाइम पे अगर आपको किसी को पैसे देने हैं और व्हेन यू आर रिसीविंग इट, यू आर एट द रिसीवर्स एंड, उन दोनों के बीच में भी गैप रहेगा। अगर वो सेम टाइम पे करते हो, आप लोग करके देख लेना, कुछ 10 रुपए का ही ट्रांजैक्शन करके देखो, कोई दो लोग मिलके, कि अगर आप उसको ट्रांसफर करें और सेम टाइम पे वो रिसीव कर रहा है, देखो कितना गैप आता है। ठीक है, सो बोथ द वेज, कोई भी पेयर ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच यू आर डूइंग, मे बी some one transaction will happen first and the second transaction will take place later. आप सेम टाइम पे इमीडिएटली अभी के अभी करना शुरू करोगे, देन ऑल्सो देयर विल बी वन ड्यूरेशन। ठीक है ना, ड्यूरेशन उसमें आएगा ही। देन कम्स द ड्यूरेबिलिटी. So once a transaction completes successfully, the changes it has made into the database should be permanent if there is a system. Isolation and consistency के जो theory है is basically the same. It tells about the isolation of the DBMS system, right? हाँ, तो ये सारी obviously ना, ये सब सारी चीजें connected ही तो है, इसीलिए तो मैंने कहा है कि atomicity है means one, isolated है means isolated है, तभी वो consistent, और ये तीनों है इसीलिए ये durable। ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से भाई, ऑल आर कनेक्टेड। मींस एटॉमिक है कि वन ट्रांजैक्शन एट अ टाइम, ठीक है, या नन, एक ट्रांजैक्शन की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज नो। कंसिस्टेंट है मींस वन एट अ टाइम, मींस आइसोलेशन में होना चाहिए, सब आपकी डेटा जो होगी वो कंसिस्टेंट डेटा हो। ओके, इट विल बी कंसिस्टेंट मींस व्हाट, परफेक्ट, करेक्ट, इट शुड बी थ्रू आउट द सेम होना चाहिए। ये नहीं कि कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी उसको 400 दिख रहा है, कभी उसको 300 दिख रहा है। नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, क्योंकि सिस्टम तो को तो जो आप बताओगे वही करेगा ना। सिस्टम क्या है, प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम में जो आपने लिखा है वो उसके सामने सब कुछ, ठीक है। सो इट शुड हैपन लाइक दैट। एंड क्योंकि आइसोलेशन में हो रहा है इसीलिए ड्यूरेबल भी होता है। अभी इसका एक और एग्जांपल चेकआउट करो। अभी जब आप लोग कुछ मनी ऐसे ट्रांसफर करते हो, तो समटाइम्स इट हैपन बिकॉज ऑफ मे बी सर्वर एरर और समथिंग एनी अदर थिंग, आपके अकाउंट में आप देखोगे कि देयर वाज सम प्रोसेस में हो जाता है, लेकिन आपके पैसे डिडक्ट नहीं होते हैं उस टाइम पे। आप लोगों ने ये चीज नोटिस की है? आपको उस टाइम पे आपको आपके अकाउंट को वहीं फ्रीज कर दिया जाता है टिल द टाइम योर मैटर गेट सॉर्टेड। उसमें से पैसे विड्रॉ नहीं होते, प्रोसेस में आ जाता है बट पैसे विड्रॉ नहीं होते। क्यों नहीं होते? कभी सोचा इसके बारे में? क्यों नहीं होते? कभी देखा आप लोगों ने पैसे ट्रांसफर कर रहे हो या बाइंग समथिंग, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मे बी बिकॉज ऑफ सर्वर एरर और एनी अदर एरर, नेटवर्क एरर, आपका पैसा होता है कि वो प्रोसेस में आ जाता है, स्पेशली जीपे और पेटीएम सब में आप देखना, एंड देन यू विल सी दैट कि उस टाइम पे आपका पूरा वो जो ट्रांजैक्शन जो हो रहा था वो फ्रीज हो जाता है, बट योर अकाउंट्स गेट इंटैक्ट ओवर देयर। Yes, ma'am. It is not touched. प्रोसेस में हो जाता है फिर भी। हाँ, यस मैम, इसमें कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, पेमेंट पेज जब आ जाता है
एंड हम लोग डिटेल्स डाल देते हैं तो ना पैसा कट जाता है बट पेमेंट कंफर्मेशन नहीं आता है। yes, तो इन दैट yes. केस क्या होता है, वो रिटर्न हो जाता है फिर हम लोग को हाँ, पैसा। वो रिटर्न, वो रिफंड हो जाता है, वो रिफंड हो जाता है। देखो मैं ये दो तरीके के प्रॉब्लम्स आ जाए तो क्या होता है ना कि ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे आपका काम हो गया। जैसे मान लो फिर ट्रांजैक्शन के टाइम पे प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आपका काम नहीं हो गया। दूसरा होता है कि व्हेन यू आर पेइंग समवन, आप पे कर रहे होते हैं, जैसे अमेजोन को, फ्लिपकार्ट को, तो आप पे कर रहे हो तो अब जब उनके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपका ट्रांजैक्शन हो गया लेकिन उनके लेवल पे व्हेन यू आर ट्रांजैक्शन, व्हेन यू आर रिलेटिंग सेंडिंग द मनी, वहां पे सर्वर एरर के थ्रू आपका वो पैसा विड्रॉ हो जाता है बट इट इज नॉट कमिंग टू द रिसीवर्स। इसीलिए तो यार ये सब इतनी ट्रांसपेरेंट है। आपके ट्रस्ट कितना बड़ा फैक्टर है यहाँ पे कि आपका पैसा कट भी जाता है फिर भी आपको कोई डर होता है, अरे नहीं रिफंड हो जाएगा 2 दिन 3 दिन, दैट्स यस और नो। क्योंकि ये सब चीजें इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कि सबको पता है कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम you have started doing the transaction and where it got stuck. जहां पे स्टक अप होता है वही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके एंड देन योर मनी इज। तो यही सब तो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। जो लोग इसमें इतने, अगर ये सब ट्रस्ट नहीं रहता, अगर ये सब सिस्टम नहीं रहता, अब आप सोचो इतना कन्वीनियंट रहता है ई कॉमर्स पूरा आपका, या जितने ट्रांजैक्शंस व्हिच वी आर डूइंग टुडे। नो मैम, not at all. It has made our life so simple, so much transparent in nature, so much transparent. Everything, each and every transaction is very clear, crystal है पूरा। कहीं अच्छा ठीक है forgery हो जाए वो अलग बात है, that is something gray part, we don't want to talk about that. But when we are talking about the simple process, it is really very much clear and very much transparent in nature. We know that where our क्योंकि durable, हमें पता है कि हमें कहाँ से अपना ट्रांजैक्शन रिकवर करके देना। इसीलिए यहाँ पे एक रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, ओएस का वो आ जाता है पार्ट, ठीक है, लेकिन वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। लेकिन सिंपल है कि this recovery management system just do that and just find out at where our transaction actually got stuck up and then when वहां से वो पूरा अपना काम कर दिया। अगर पैसे विड्रॉ हो गए रहते तो उनको रिफंड कर दिया जाता है, और अगर नहीं होता है तो वहीं का वहीं वो ट्रांजैक्शन को पूरा abort कर दिया जाता है। It gets stopped over there. Okay? Hope this is clear to all of you students. Yes ma'am. All the points. yes ma'am. Yes ma'am. Any confusion? Okay. Now, how your logical data element actually looks like. ठीक है, so ये लॉजिकल डेटा एलिमेंट जो है, जैसे मान लो हम पर्सनल डेटाबेस की बात करते हैं, एम्प्लॉय पर्सनल या एम्प्लॉय डेटाबेस, anything you can name it. So generally it comes into the payroll file or the benefit file or leave file. There are so many things which come. So आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हो कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड 1 को हमारा नेम एसएस सैलरी होगी, एम्प्लॉय रिकॉर्ड 2 का नेम एसएस सैलरी होगी, एम्प्लॉय रिकॉर्ड 3 का भी ऐसे ही हम क्रिएट करेंगे एंड देन यू स्टार्ट डूइंग द डेटा एंट्री। ठीक है, उनका डेटा आप एंटर करना शुरू कर देते हो। सो मे बी दिस कैन बी वन ऑफ द लॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे क्या फाइंड आउट कर देते हो। दूसरी बात आती है आपकी क्या क्या यूज हम करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट इज योर कैरेक्टर। इट इज अ सिंगल alphabetic, numeric or other symbol which you use as a character for doing any types of entry. Then comes field or the data items. So first is your field or the data items. So field क्या हो जाता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक एंटिटी की, एंटिटी स्टूडेंट एंटिटी, स्टूडेंट एंटिटी, तो उनका स्टूडेंट एंटिटी का क्या हो जाता है, एनरोलमेंट नंबर, देन देयर नेम, देयर एज, देयर any other attributes when you talk about. अभी मैं 1 मिनट आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे हम करेंगे इसको। अभी ये ER डायग्राम में मैं बताना शुरू करूंगी, then I will just start from here itself. Can you see the whiteboard, students? Yes ma'am. yes ठीक ma'am. है, तो जैसे हम पहले अपना एक एंटिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, कोई भी एंटिटी हमने डिफाइन किया यहाँ पे, जैसे स्टूडेंट एंटिटी हो गया। अभी ये स्टूडेंट क्या हो गया, स्टूडेंट हमारा यहाँ पे ये हमारा हो जाता है एंटिटी। इसे को हम लोग ER डायग्राम के थ्रू भी बनाएंगे स्टूडेंट्स बाद में। We are just starting. ठीक है,
ये हमारी एंटिटी हो गई। अब हम इसका एट्रीब्यूट डिफाइन करें, कुछ भी एज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट वेरिएंट यू कैन एट्रीब्यूट डिफाइन करना हमने शुरू किया। ओके, ये इसकी एट्रीब्यूट। स्टूडेंट्स आप लोग अपनी ड्राइंग कैपेबिलिटी थोड़ी अब अच्छी कर लो। मैं एक्सेल पे भी सिखा दूंगी कि ये कैसे बनाते हैं एक्सेल पे भी, ठीक है। सो दैट whichever way you find it or you want to draw it from pen and pencil only, ये जब मैं पूरा बताऊंगी ना तब अच्छे से करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, इनरोलमेंट नंबर, ठीक है। दूसरा हो गया इसका एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, हो सकता है नेम। तीसरा एट्रीब्यूट क्या हो सकता है इसका, एज। चौथा एट्रीब्यूट क्या हो सकता है इसका, एड्रेस, ठीक है। सेम वे आप एकदम चलते चलो कि कितने आपको एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं ऑफ अ स्टूडेंट एंटिटी। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कम्स ऑफ द प्राइमरी की, ठीक है। मैं भी पढ़ाऊंगी उसको, लेकिन मैं जस्ट एक अभी यहाँ पे बता देती हूँ बिकॉज आई हैव ओपनड इट। इनरोलमेंट नंबर, तो इनरोलमेंट नंबर में भी आपके क्लास में हो सकता है कि देयर आर मेनी अमित, अभिषेक, एक ही नाम के बहुत सारे लोग। लास्ट ईयर एक सेक्शन में 4 अमन जैन थे। अभी उन अमन जैन को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? सो उनके लिए कुछ तो यूनिक मुझे बनाना है सो दैट आई कैन बाइफरकेट ऑल द अमन जैन्स इन द क्लास। एक क्लास ऐसा था जिसमें 5 अपूर्वा थे, 3 लड़की थी सेम नाम से एंड 2 बॉयज वे थे विद द नेम अपूर्वा। सो दिस इज, हाँ, तो मैं कैसे बाइफरकेट करूँ? तो मैं उनको डिफाइन करूंगी थ्रू देयर एनरोलमेंट नंबर बिकॉज दैट इज यूनिक इन नेचर, दैट इज यूनिक इन नेचर क्लास, ठीक है। और इसीलिए जो भी हमारा इस टाइप से रहता है, जो भी हमारा एनरोलमेंट नंबर या जो भी हम डाल रहे हो, इसको हम कहते हैं प्राइमरी की। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इन चीजों को? हम प्राइमरी, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, मैं भी लिख रही हूँ, इसको ऐसे नहीं बनाते, ये मैं अच्छे से बताऊंगी बस इसके लिए। ये हो जाता है हमारा प्राइमरी की। ओके, प्राइमरी की defines that it is a key which will define it that okay through this, अगर हमने किसी चीज को कनेक्ट किया है, जैसे मान लो एड्रेस है, तो प्राइमरी की में अगर 21 BSP 4241 अगर का एड्रेस चेंज हो रहा है, तो वो हर जगह जहां जहां वो प्राइमरी की एसोसिएटेड विद एड्रेस है, वो हर जगह चेंज हो जाएगा। एवरीवेयर दैट विल बी चेंज, इट विल नॉट बी सेम थ्रू आउट। ओके क्लास, ठीक है, यहां तक क्लियर है? सो ये क्या हो गई स्टूडेंट, हमारी स्टूडेंट एंटिटी। एंड व्हाट आर ऑल these are attributes, very good. These are all attributes, these are all address, age, enrollment number, their educational background, their phone number, their email ID, their gender, everything will be known as your attributes, ठीक है। बहुत सोचना पड़ता है स्टूडेंट, जब बच्चों को ईआर डायग्राम दो ना, मैम क्या होगा इसका एट्रीब्यूट, उसका एट्रीब्यूट क्या, जैसे प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट, सेल्स के एट्रीब्यूट, तो वो सब सारा मैं कराऊंगी आपको, ठीक है। Okay class, so you have field or the data items that represents an attributes, characteristics or the quality of some entity, like for example object का हो गया, किसी person का हो गया, किसी place का हो गया, किसी event का हो गया। Example salary, job title of employees in the organization or working in certain departments, ये तो सारी चीजें आपका हो जाए। Then comes a recording. Record means all the entries which you are doing. So recording ये हो गई grouping of all the fields used to describe the attributes of an entity. Then your file or the table, a group of related records, means related means like for example section Q का आपने record बनाया, तो क्या है related, आप लोगों में common क्या है कि that you all belong to section Q, that you all belong to student fraternity, you all have a same line of educational background and you all are pursuing same PGPM. So क्या हो, आप लोग related हो।
सो आपकी रिकॉर्ड्स जो होगी, आपकी क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मार्केटिंग स्पेशलाइज करेंगे, बहुत बच्चे होंगे जो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन, सो कुछ कॉमन है फैक्टर्स इन ऑल. And the database is an integrated collection of the logically related data elements, all the data elements. Then comes your database management system, obviously, which we discussed. What do you understand by operating system, students? Operating system क्या होता है? आपके सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है अभी लगाओ? Windows. Yes. यूजर इंटरफेस क्रिएट करता है, मतलब हेल्प करता है. यूजर, हाँ, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड योर सिस्टम, हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो ये सब सारी चीजें होती हैं विच फैसिलिटेट्स योर ऑपरेटिंग. आपके मोबाइल फोन्स पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है. एंड्रॉइड में एंड्रॉइड है. जिनके पास एप्पल है उनके पास कौन सा है, उसमें कौन सा ओएस यूज होता है? iOS यूज होता है. Yes, so these, हाँ, this is the, आप जब भी कोई, क्यों स्मार्टफोन्स में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है? क्योंकि बिकॉज इट क्रिएट्स अ कनेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द डिवाइस. ओके, आपकी जो भी डिवाइस है उसके बीच में कनेक्शन पैदा करती है. सो दैट इज व्हाई अभी जब मैं रिकवरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रही थी, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है कि वो रिकवर कर लेता है कि कब कहाँ कौन सा डेटा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है ना, कहाँ कौन सी ट्रांजैक्शन इज लाइंग डाउन, शेड्यूलिंग एंड एवरीथिंग, जॉब कैसे शेड्यूल करते हैं, सब सारी चीजें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो जाती है. Then obviously there are many softwares available for the database management system. All the organizations, small or big, hardly matters. हर level के databases आज is today in today's scenario is available for the organization. And then you have application programs, the different softwares which you are using for the database management system. Then you have the entire databases, and then you have a very important concept known as your data dictionary. Now, what does dictionary is known as? Dictionary क्या काम करता है आपके लिए स्टूडेंट्स? मैं वो स्टोर कर लेता है, लाइक एज वी टाइप ना, तो वो कोई वर्ड्स को लाइक स्टोर कर लेता है, तो फिर हम लोग जब फ्यूचर में कभी यूज करेंगे तो वो हम लोग वो डिक्शनरी से ऑटोमेटिक वो वर्ड्स वहां पे आ जाते हैं. यस, जैसे आप टाइपिंग भी करते हो अपने मोबाइल फोन्स में, तो क्या बोलता है कि शुड दिस वर्ड, इफ यू टाइप एनी न्यू वर्ड, तो उसमें पूछता है ना ऑप्शन कि ये डिक्शनरी में आपके ऐड ऑन हो जानी चाहिए. सो इट लाइक फॉर एग्जांपल जब आप स्कूल्स में डिक्शनरी यूज करते थे उस टाइम पे, याद होगा आपको, जैसे के से कोई वर्ड ढूंढना है, सो क्या करते थे आप? स्ट्रेट अवे आप हर पेज को थोड़ी करते थे, यू जस्ट गो डायरेक्टली टू द पेज नंबर वेयर के स्टार्ट्स. जैसे के ए से कोई वर्ड है तो यू इमीडिएटली गो टू के ए वाला, कि आप हर पेज स्क्रॉल करते थे. इट इज नॉट लाइक दैट. ओके, यू डोंट गो थ्रू ईच एंड एवरी पेज. तो आप अपना कीवर्ड्स जानते. So keywords के through you can easily find out that where your data is actually lying. पूरी एक इंडेक्सिंग बना के आपको दे. एंड टुडेज अभी तो क्या हो रहा है कि आप एक क्लिक करो, एक वर्ड टाइप करो, वो सारी चीजें आपके डेटा डिक्शनरी में आपके डेटाबेस में स्टोर होके रहते. ठीक है, so these are all your systems which are facilitating, and obviously your database development, interrogation, maintenance, and application development facilitates you in doing that. Now your problems with the traditional file environment, which actually facilitated the database to come up, was the problem of the data redundancy in presence of duplicate data in multiple files. जहां जरूरत नहीं वहां पे भी multiple files आपकी बन जाती थी. इसीलिए हम लोग normalize भी करते हैं, decompose भी करते हैं, because in this environment also कहीं ना कहीं duplication हो जाती है. So उस duplication को हम जितने हद तक हो सकता है रिड्यूस कर देते हैं, बिकॉज इट एक्चुअली क्रिएट्स ह्यूज लॉट ऑफ स्पेसेस. सो वो रिडंडेंसी, डुप्लीकेसी जो है वो यू कैन बी रिमूव, बट इन द ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट इट वाज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट. अभी जब हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी वाज सेम एट्रीब्यूट हैविंग डिफरेंट वैल्यूज. समझ रहे हो? सेम एट्रीब्यूट हैविंग डिफरेंट वैल्यूज. एक एट्रीब्यूट है लेकिन वैल्यूज कुछ से कुछ आ रहे हैं. तो वो चीज हमें नहीं चाहिए. हमें एकदम फिक्स कर देना कि अच्छा ठीक है, हमें एक ही एड्रेस लेना है, हमें एक ही 1 by 1 ट्रांजैक्शन करना. तो वो इनकंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए. देन वी हैव प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंस. मींस आपकी क्या होती है जनरली, अब आजकल जैसे जनरली द सिस्टम्स आर बिकमिंग वेरी मच एडवांस इन टुडेज सिनेरियो. आपका आज का प्रेजेंट डेटाबेस जो है वो कभी किसी एनवायरनमेंट में काम कर सकता है. इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है, अभी क्या होती है कि प्रोग्राम
डेटा डिपेंडेंसी नहीं होंगे। अभी जैसे अभी आपको कुछ अपनी क्वेरी लिखनी रहती है, आपको प्रोडक्ट्स ही देखने रहते हैं, और इफ यू वांट टू जस्ट गो थ्रू, तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल फीचर्स तो नहीं डाउनलोड करना रहता है। आप इमीडिएटली जाते हो अपने मोबाइल फोन्स के भी थ्रू, यू कैन स्क्रॉल थ्रू द प्रोडक्ट्स, यू कैन जस्ट गो टू एनी ऑफ दीज थिंग्स। तो उसकी डिपेंडेंसी किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे नहीं है कि अच्छा आपके पास ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रहेगा देन ओनली यू विल बी एबल टू बाय ऑनलाइन, ऐसा तो नहीं होता है। डिपेंडेंसी किसी एक फीचर के ऊपर नहीं, पहले हुआ करती थी, बट राइट नाउ मींस आप ऐसा सिस्टम डेवलप करते हो, सिस्टम इज डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट इट इज वेरी मच फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड इट कैन बी यूज्ड बाय ऑन एनी प्लेटफॉर्म। कोई भी प्लेटफॉर्म पे, आप मोबाइल पे यूज करो, आप टेलीविजन पे यूज करो, you want to use it on your laptops, wherever you want it, you can easily use and scroll those data. Then earlier it was flexibility was not there, as just we were discussing कि flexible नहीं हो पाता, कहीं पे भी आप इन सब चीजों को नहीं एक्सेस कर सकते थे, but right now you can access anywhere you want, you can just do that. Security was not good, ठीक है, security was very poor, but right now जितनी ज्यादा sophisticated आपकी database बनती चली जा रही, security is becoming much more impactful nowadays. Now, and lack of data sharing and availability वो भी बहुत possible नहीं था, but with the advent of the database management system, sharing and the availability of the data has become much more easier in nature. Okay, class. So we will discuss it in the next class, and we will start with your normalization in the next class. 2 or 3 points are left. We will start. Okay. Okay, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Take care, all of you. Bye. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.